Today I will teach you the reproduction in case of Rexia. You are studying a bryophytic plant named Rexia. You have studied the morphology and anatomy of this plant. Today we will learn about the reproduction in Rexia. So, look here. There are only two types of reproduction in Rexia. One is the vegetative reproduction and other is the sexual reproduction. It means asexual reproduction is completely absent in case of Rexia. During when you were studying the general character, I have told you at that time that the bryophytic plant reproduces only by two methods. One is the vegetative reproduction and other is the sexual reproduction. It means bryophytic plant doesn't form any type of spores. Bryophytic plant do not develop zoospore, a planospore, a kinete, hypnospore, palmellistage, endospore, exospore. Means spore formation does not take place in case of bryophytic plant. So you can say the bryophytic plant does not reproduce through the asexual reproduction by the formation of spores. That's why you can see here the Rexia reproduces only by two methods. One is the vegetative reproduction and other is the sexual reproduction. The vegetative reproduction, it takes place by the following method. Like first method is the by death and decay of the older portion of the thallus. The second method is by the formation of tuber. The third method by the development of adventitious branches. And the last method is the by rhizoid. In some cases, rhizoid also becomes active and may develop into a new individual of that particular species. So, first of all, we will learn about the vegetative reproduction one by one. First, by the death and decay of the older portion of the thallus. मैंने क्या कहा है? By the death. Death माने मरना. By death and decay. Death means मरना, decay means सड़ना. तो कोई भी चीज जब मरती है और फिर सड़ जाती है, सड़ जाती है, तो जो उसका मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म होता है वो अस्तित्व खत्म हो जाता है. तो किसका अस्तित्व खत्म हो रहा है? थैलस के ओल्डर पोर्शन का. और जब हम आपको पढ़ा रहे थे उस समय मैंने आपको बताया था कि जो थैलस होता है वो डाइकोटोमी शो करता है. Look here. Suppose this is the thallus of the Rexia and this thallus, this is the dorsal view. I have told you that the bryophytic plant shows two circles, dorsal circus and ventral circus. Dorso-ventrically ऐसा structure इसका होता है. So this is the dorsal view. On the dorsal view there are midline and that is called midrib. You can see here it shows branching. It shows branching. How type of branching? Branching is dichotomously. This branching is called dichotomously branching. जब भी बटेंगे दो बराबर भागों में बटेंगे. ये ऐसे नहीं बट रहा है. देखो ऐसे बट रहा होता तो हम कहते हैं सिंगल एक ब्रांच जा रही है. ऐसे बट रहा होता तो सिंगल एक ब्रांच जा रही होती है ना. मोनोपोडियल ब्रांच बोल देते. यहाँ कैसी ब्रांच है? जब भी बटेंगे तो बराबर भागों में बटेंगे और ऐसी ब्रांचिंग को कहते हैं डाइकोटोमसली ब्रांचिंग. अभी एक नंबर का क्वेश्चन बनता है कि डाइकोटोमसली ब्रांचिंग की विशेषता क्या है. तो आपको क्या कहना होगा कि थैलस दो इक्वली पार्ट में डिवाइड होता है. और ऑप्शन कई गलत भी लिखे होंगे. तो देखो
all look here. This is dichotomously branching of the rexia. Now this is the younger part of the thymus. ये पार्ट कैसा पार्ट है? यंगर पार्ट है. और ये पार्ट कैसा पार्ट है? दिस इज पोस्टीरियर पार्ट. यानी ये पहले बना होगा और ये पार्ट बाद में बना होगा. ये यंगर है और ये पोस्टीरियर है. हम किसी पौधे को अगर बनाते हैं, देखो तो ये देखो लीफ बनाया मैंने, ये देखो लीफ बनाते जा रहे हैं हम. तो यहाँ क्या है? ये देखो छोटी छोटी लीफ बना रही हूँ मैं, है ना. ये तो यानी ये यंगर पार्ट है और ये ओल्डर पार्ट है. ये पहले बना और ये बाद में बना. तो ये ऐसे थैलस में क्या है? ये पार्ट पहले बना है और ये पार्ट बाद में बना है. तो ये यंगर पार्ट है और ये पोस्टीरियर पार्ट है. तो ये प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगा? बाय डेथ एंड डिके ऑफ द ओल्डर पोर्शन ऑफ द थैलस. यानी ओल्डर पोर्शन यहाँ से क्या होने लगेगा? मरने लगेगा और सड़ने लगेगा और डाइकोटोमी तक जाएगा. ये देखो अब क्या हो गया यहाँ, ये पोर्शन हमें, ये पोर्शन में कैसा दिख रहा है? ये देखो ये यहाँ पर देखिए ये पोर्शन क्या हो गया? ये मर गया और मर के सड़ गया, है ना. पोस्टीरियर पोर्शन मर गया और फिर धीरे धीरे सड़ गया. डिकम्पोजिशन, जो भी चीज मरेगी उसी का डिकम्पोजिशन होता है. और डिकम्पोजिशन कौन करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म. और कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म? देखो दूसरे यूनिट की बात बता रहे हैं. बैक्टीरिया और फंजाई. ये दो एजेंट ऐसे हैं जो दुनिया की हर चीज को सड़ा के खत्म कर देते हैं ना. तो यहाँ तक ये खत्म हो गया. तो अब ये दो भाग अलग अलग दिख रहे हैं ना आपको. वन पार्ट इज दिस, अदर पार्ट इज, ये देखो दो पार्ट दिख रहा है ना. तो धीरे धीरे ये क्या होगा? एक थैलस में बदल जाएगा. देखिए एक थैलस में बदल गया. तो देखिए एक थैलस से दो थैलस का फॉर्मेशन हो गया. और ये जब बड़ा होगा तो फिर ये डाइकोटोमी करके फिर बड़ा अपना एडल्ट फॉर्म जैसा थैलस डेवलप कर लेगा. बोलिए आपकी समझ में आया? बाय ट्यूबर, बाय द फॉर्मेशन ऑफ द ट्यूबर. अब ट्यूबर का फॉर्मेशन अगर होगा तो कैसा होगा? ये देखो दिस इज द थैलस ऑफ, दिस इज द थैलस ऑफ रेक्सिया. और इस थैलस के ऊपर यहाँ ये लुक किया, ये देखिए ये ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो गया. है ना. ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको. और ऐसे भी डेवलप हो सकता है पाइसिस. देखो यहाँ ये डेवलपमेंट कहाँ पे है? एपाइसिस पे हो गया. ऐसे भी डेवलप हो सकता है. देखा. तो क्या हुआ कि व्हेन अनफेवरेबल कंडीशन कम्स, हमारे आपके लिए जब भी अनफेवरेबल कंडीशन आ जाता है तो हम क्या करते हैं? बहुत सीवियर ठंडक आ गई तो हम कोट पहन लेते हैं कि नहीं? स्वेटर फिर कोट पहन लेते हैं. ऐसे ही इसके लिए जब अनफेवरेबल कंडीशन आ जाता है, एट दैट टाइम इट डेवलप्स द ट्यूबर. क्या डेवलप कर लेता है? ट्यूबर डेवलप कर लेता है. यानी फोटोसिंथेसिस से जो कुछ भी इसने फूड मटेरियल बनाया वो कहाँ एक्यूमुलेट हो जाएगा? जाकर के इस ट्यूबर में एक्यूमुलेट हो जाएगा. इसमें एक्यूमुलेट हो जाएगा. देखो इस ट्यूबर में एक्यूमुलेट हो गया. यहाँ एक्यूमुलेशन हो गया किसका? रिजर्व फूड मटेरियल का. तो जब अनफेवरेबल कंडीशन आएगा, बहुत ठंडक आ गई है, बहुत गर्मी आ गई है, दोनों कंडीशन अनफेवरेबल है, तो चाहे हीट बहुत हो चाहे टेम्परेचर बहुत लो हो गया हो, एट दैट टाइम डेजिकेशन टेक्स प्लेस. डेजिकेशन हो जाएगा, सूख जाएगा. तो ये पूरा थैलस सूख के पपड़ी की तरह, पपड़ी तो जानते होंगे ना, काई वाई जहाँ जमी होती है, सनलाइट
जाता तो एक परत सी बन जाती है, वैसा ये सूख जाएगा। लेकिन ये ट्यूबर इसमें हाई अमाउंट ऑफ रिजर्वोयर मटेरियल है, तो ये पेरिनेटिंग बॉडी की तरह। अब आपसे पूछा जा सकता है व्हाट डू मीन बाय पेरिनेटिंग बॉडी। तो पेरिनेटिंग बॉडी उस बॉडी को कहते हैं, उस पार्ट को कहते हैं जो उस स्पीसीज को अनफेवरेबल कंडीशन के बाद जब भी उसको उससे नया पौधा तैयार करना हो तो किया जा सकता है। जैसे फंजाई है, फंजाई का आप देखते होंगे स्पोर बनता है, चलो, और एल्गी में आपने देखा होगा एप्लानोस्पोर, हिप्नोस्पोर, कई प्रकार के स्पोर बनते हैं और स्पोर फेवरेबल कंडीशन आने पर एक्टिव हो जाते हैं। तो स्पोर्स क्या हैं? पेरिनेटिंग बॉडीज है। समझ में आ गया? पेरिनेटिंग बॉडी इज दैट बॉडी ऑफ एनी इंडिविजुअल, any plant which can carry over the unfavorable condition and after coming the favorable condition may have the ability to develop the new plant of that particular species। मतलब जिस भी species का है उसको डेवलप करने में सक्षम होता है। तो बोलिए बात समझ में आई आपके, है ना? यहाँ से नए थाइलस का फॉर्मेशन हो जाएगा। कब हो जाएगा? जब फेवरेबल कंडीशन आ जाएगा। ओके, now the third method कौन सा था? By adventitious branches। Look here, this is the, कोई बता सकता है मैंने क्या बना दिया है? कोई बता सकता है भाई? What is this? क्या है ये? Do you know what is this? What is this? Do you know? ये क्या है? Lazoid। ये ही रिक्सिया है। हमने क्या बताया था आपसे जब जनरल कैरेक्टर आपको पढ़ा रही थी, तो मैंने बताया था कि ग्राफ्टिक पौधों को हम एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके एंसेस्टर, किसको एंसेस्टर माना जाता है? एल्गी को। और एल्गी का हैबिटेट क्या है? मोस्टली दीज आर फाउंड इन द एक्वाटिक कंडीशन, वाटर में पाया जाता है। और जब उसका एडवांसमेंट हुआ, इवोल्यूशन हुआ, तो किसका जन्म हुआ? ब्रायोफाइटा का। तो धरती पर आने वाले जो सबसे पहले पौधे थे, जो जल में रहने वाला भी कैरेक्टर जिनके पास है, थल में रहने वाला भी कैरेक्टर जिनके पास है, मेढक जल में भी रह सकता है और बाहर भी रह सकता है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं? एम्फीबिया कहते हैं। तो जो ब्रायोफिटिक पौधे हैं इनमें भी एक्वेटिक कैरेक्टर देखे गए और टेरेस्ट्रियल कैरेक्टर देखे गए। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द ब्रायोफिटिक प्लांट्स आर एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। और ये क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम कौन है। जैसे एंजियोस्पर्म है कि जिम्नोस्पर्म है कि ब्रायोफाइटा है कि थैलोफाइटा है। तो आपको याद रखना है कि मैम ने बताया था हैविंग बोथ कैरेक्टर, पानी में रहने वाला और थल पर रहने वाला, दोनों कैरेक्टर इसके पास है ना? तो और सब पौधे तो थल पर आ गए और सारी स्पीसीज कहाँ आ गए? थल पर आ गए। लेकिन रिक्सिया की, ध्यान से सुनिए, रिक्सिया की एक स्पीसीज ऐसी है जिसे हम रिक्सिया, इसे हम रिक्सिया फ्लुइडेंस कहते हैं। रिक्सिया फ्लुइडेंस। दिस स्पीसीज इज कंप्लीटली एक्वाटिक इन नेचर। इस स्पीसीज ने मना कर दिया, जैसे गांव से लोग गांव का घर छोड़ के शहर में आ जाते हैं, लेकिन जो बाबा लोग कहते हैं अपना पैतृक स्थान नहीं छोड़ेंगे, हम वही गांव में रहेंगे, चाहे बगल में जंगल हो, टाइगर आ जाए, कोई मतलब नहीं, लेकिन अपना खेत घर नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे ही रिक्सिया की सारी स्पीसीज तो इवॉल्व होके थल पर आने लगी, लेकिन ये स्पीसीज कैसी रही? इसने जल में रहना ही पसंद किया, एडॉप्टेशन टेरेस्ट्रियल नहीं किया। तो इस स्पीसीज का नाम है, अब ये स्पीसीज आपसे 1 नंबर में पूछी जा सकती है, विच स्पीसीज ऑफ द रिक्सिया इज एक्वाटिक इन नेचर। और उसमें लिखा रहेगा रिक्सिया डिस्कॉलर, रिक्सिया ग्लाउका, कई स्पीसीज का नाम लिखा रहेगा।
और उसी में एक स्पीशीज लिखी रहेगी रिक्सिया फ्लुइडेंस। तो कहाँ पे टिक लगेगा? कहाँ पे टिक लगेगा? फ्लुइडेंस पर टिक लगेगा। तो देखिए समझ में आया ना आपके, रिक्सिया फ्लुइडेंस। ओके, समझ में आया आपके? तो देखिए इसके वेंट्रल सरफेस पे अगर ये ब्रायोफाइटा है तो इस ब्रायोफिटिक पौधे के भी डोर्सल और वेंट्रल दो व्यू होगा कि नहीं, बोलो? हाँ, तो ये मैंने कौन सा व्यू दिखाया है बताओ? ये वेंट्रल व्यू दिखाया है ना। तो इस वेंट्रल व्यू पर देखिए, इस वेंट्रल व्यू पर यहाँ एक वेंट्रल व्यू से एक लंबा सा फिलामेंटस स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है और यही फिलामेंटस स्ट्रक्चर फिर मल्टी सेलुलर होने लगता है और इसका ये टर्मिनल पार्ट बार बार डिवाइड होकर के फिर एक नए थैलस को यहाँ से जन्म दे देता है। तो यानी कि रिक्सिया फ्लुइडेंस में नए पौधे का जन्म किससे हो रहा है? बताइए किससे हो रहा है? बाई adventitious branch. By the development of adventitious branch which develop from the ventral surface of the Rixia fluitans, and its apical portion, its terminal portion becomes active, divide and redivide and finally may develop into a new individual of the Rixia fluitans. बोलिए समझ में आया आपके? इसी तरीके से लास्ट मैंने बताया था बाई द rhizoid. Sometimes the apices of the rhizoid. I think you all are well known that the rhizoid, एक क्वेश्चन ये भी बनता है, रिक्सिया में rhizoid किस प्रकार का होता है? यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, असेलुलर या नन ऑफ दीज? तो आप क्या लिखोगे? यूनिसेलुलर। आपको पढ़ाया है मैंने कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर यूनिसेलुलर। तो सम टाइम क्या होता है कि कोई स्पीशीज रिक्सिया की देखो ये है और मान लिया कि ये इसका वेंट्रल सरफेस है और इससे ये देखो राइजोइड निकली हुई है। कभी कभी राइजोइड का ये टर्मिनल पोर्शन है, टर्मिनल मींस बिल्कुल एपाइसिस, सबसे आगे का पोर्शन, ये मेरिस्टेमेटिक हो जाता है और यहाँ से एक नए थैलस का जन्म हो जाता है। और ऐसा किस स्पीशीज में देखा गया है? रिक्सिया ग्लाउका। कौन सी स्पीशीज में राइजोइड के द्वारा होता है? रिक्सिया ग्लाउका। तो याद रहेगा, एडवेंटिशियस ब्रांच से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है रिक्सिया फ्लुइडेंस में और राइजोइड से नए प्लांट का डेवलपमेंट होता है किसमें? ग्लाउका स्पीशीज में। सो इन दिस वे यू हैव स्टडीड द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ रिक्सिया। नाउ you will learn here the sexual reproduction in case of Rixia. Sexual reproduction in Rixia. तो इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या हो सकते हैं? कैरेक्टरिस्टिक फीचर पहला क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज sexual the characteristic feature of the sexual reproduction in case of Rixia, it is oogamous type. आपने algae के केस में पढ़ा होगा कि in algae there are three type of sexual reproduction: isogamy, anisogamy and oogamy. Here oogamy is present. Isogamy is primitive type and oogamy is advanced type of sexual reproduction. So Rixia reproduces sexually and the reproduction is oogamous type. oogamous प्रकार का होता है। अब आप पूछ सकते हैं कि what do you mean by oogamous? oogamous का मतलब क्या हुआ कि male gamete is active and motile and female gamete is passive and non-motile, doesn't having the flagella. मतलब कि मान लो अगर हम मेल गैमीट बना रहे हैं तो देखो मान लो मैंने ये मेल गैमीट बनाई है और मेल गैमीट के पास देखो फ्लैजिला है
ये देखो मेल गैमीट है और मेल गैमीट के पास क्या है, फ्लैजिला है। और फीमेल गैमीट देखिए मैंने ये बनाई है और फीमेल गैमीट ओवा है। कैसी है ये फीमेल गैमीट कैसी है, इसके पास फ्लैजिला नाम की चीज नहीं है। तो यही लोअर प्लांट में जो रिप्रोडक्शन वो गैमस प्रकार का होता है, यही एडवांस टाइप का रिप्रोडक्शन कहलाता है, जहां मेल इज मोटाइल, मेल स्विमिंग करता है ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर इन सर्च ऑफ फीमेल गैमीट, और फीमेल गैमीट इट फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। देखो दो चीजें हो गई ना, स्विमिंग करना फ्लैजिला के थ्रू हो रहा है, यानी धारा के विपरीत भी जा सकते हैं, और जो फ्लोट करता है, जो कोई तैरने वाला व्यक्ति है वो स्विमिंग करता है, और मरी हुई लाश वो स्विमिंग करती है, वो फ्लोट करती है। तो फ्लोट में और स्विमिंग में अंतर समझ में आ गया ना आपके। तो ये वो गैमी जो होती है, एल्गी के केस में बता रही हूँ कि ये फ्लोट करेगा और ये फ्लोट नहीं करता, ये स्विमिंग करता है। तो रिक्सिया के केस में, यानी जब ब्रायोफाइटा में हम वो गैमी पढ़ते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि ये अगर आर्चिगोनिया है, लुक हियर, अगर ये आर्चिगोनिया मान लेते हैं, तो देखो आर्चिगोनिया के ऊपर यहाँ क्या होता है, वेंटर होता है, और यहाँ एमसीसी होती है कि नहीं होती है। तो देखो ये कहीं फ्लोट कर रहा है, नहीं कर रहा, जबकि ये फ्लैजिलेटेड बॉडी है। मेल गैमीट कैसा है, यूनिसेलुलर, यूनिन्यूक्लिएट, बाइफ्लैजिलेट, एंड इट कैन स्विम, कम्स टुवर्ड्स द आर्चिगोनिया, गेट एंट्री थ्रू द नेट, comes in the venter and finally fuse with the egg cell to form the zygote. That's why it is called oogamous type of reproduction. And male sex organ is called male sex organ को क्या कहते हैं? It is called एंथेरिडियम। ढेर सारी होंगी तो एंथेरिडिया, सिंगल की बात करेंगे तो एंथेरिडियम। सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में क्लियर होना चाहिए आपका कंसेप्ट। तो मेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है, एंथेरिडियम। और तीसरी चीज क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है हमारे पास यहाँ, आर्चिगोनियम, यानी एंथेरिडियम is the male sex organ of the Rixia and Archegonium is the female sex organ of the Rixia. So look here, Archegonium it represents the female sex organ and Antheridium it represents the male sex organ. Antheridium develops antherozoid. ये क्या बनाएगा भाई, एंथेरोजोइड बनाएगा। और फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या बनाएगी, एग सेल बनाएगी, एग बनाएगी, है ना। फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम से क्या मिलेगा, एग मिलेगा, और मेल सेक्स ऑर्गन से क्या मिलेगा, एंथेरोजोइड मिलेगा। और जब फर्टिलाइजेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन इज अ प्रोसेस, this is very important event of the sexual reproduction when the male gamete and female gamete get fused to each other, है ना, दोनों एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे। कैरियोगैमी एंड प्लाज्मोगैमी टेक्स प्लेस, सब कुछ उनका एक में मिक्स अप हो जाएगा, यानी फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन अगर हो रहा है यहाँ पर, और फर्टिलाइजेशन हम देख रहे हैं कि मोटाइल गैमीट से हो रहा है। मेल गैमीट इज मोटाइल, मोटाइल माने मोटा नहीं, मोटाइल माने चलने वाला, हैविंग द फ्लैजिला, है ना। तो देखो फीमेल गैमीट इज हियर, मेल गैमीट इज हियर, मेल गैमीट कमिंग टुवर्ड्स द फीमेल, फीमेल डजंट गो देयर, फीमेल कभी भी मेल के पास always male gamete comes towards the female gamete with the help of their flagella. अगर ये फ्लैजिला से काम ले रहा है, यानी इसे वाटर की जरूरत है। अगर वाटर नहीं होगा तो फ्लैजिला किस में तैरेगा,
यानी हमने क्या समझा, वाटर इज इसेंशियल, वाटर इज essential, water is essential for fertilization. Okay, यानी fertilization needed the water, water के बिना fertilization नहीं होगा। इसका मतलब ये कौन से करेक्टर को अडॉप्ट किए हुए है बेबी, एक्वाटिक करेक्टर को। चला तो गया थल पर, लेकिन थल पर जाने के बाद भी इसने एक करेक्टर कैसा अडॉप्ट किया है, एक्वाटिक करेक्टर, अपने एंसेस्टर का करेक्टर। यानी हम कह सकते हैं, कोई पूछ ले सिमिलरिटी बिटवीन द ब्रायोफाइटा एंड एल्गी, तो क्या सिमिलरिटी है, सिमिलरिटी इज water is essential for fertilization in case of algae and in case of Bryophyta. This is the similarity between the algae and Bryophyta. Okay, so water is essential for fertilization. This is very important character of the Bryophytic plant. बोलिए, इतनी बात आपकी समझ में आई? ये इतने करेक्टर आपको समझ में आए? अगर इतने करेक्टर आपको समझ में आ रहे हैं ब्रायोफाइटा के, तो निश्चित है कि आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आंसर दे लोगे, क्योंकि ये एक एक नंबर के क्वेश्चन के लिए पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसलिए मैंने लिख दिया इसमें। ओके, अब हम इसका देखो स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं। ये देखा था आपने बच्चों, ऐसा मैंने कुछ बनाया था उसने। देखो ये क्या बनाया था, एना, बोलो जल्दी, क्या बनाया था, एनाटॉमी बनाया, ये बनाया था मैंने, एनाटॉमी बनाया था ना। तो इसी एनाटॉमी में देखो क्या हो जाता है, देखो क्या देखा, यहाँ पे एंथेरिडिया का डेवलपमेंट हो गया है, यहाँ एंथेरिडिया डेवलप कर गई है। यानी जो एंथेरिडिया ये डेवलप करती है, ये देखो ये इसका जैकेट लेयर है, जिससे एंथेरिडिया घिरी रहती है, उस लेयर को हम जैकेट लेयर कहते हैं। और अंदर इसके जो सेल होती हैं उसे एंड्रोसाइट सेल्स कहते हैं। दिस इज एंड्रोसाइट, एंड्रोसाइट सेल है। और बाहर से जो कवर कर रहा है एंथेरिडियम को, इसे जैकेट लेयर कहते हैं। और ये इसका स्टाफ होता है। बोलो मेल सेक्स ऑर्गन समझ में आया? अब ये मेल सेक्स ऑर्गन किससे घिरा हुआ है बच्चों? देखो किससे घिरा हुआ है, जल्दी बताओ किससे घिरा है? फोटोसिंथेटिक जोन से। बोलो जल्दी, किससे घिरा है? फोटोसिंथेटिक, देखो फोटोसिंथेटिक जोन से घिरा है कि नहीं? ऐसा या नहीं? यानी दो फोटोसिंथेटिक वर्टिकल रो जो सेल थी, उनके बीच का ये जो स्थान था, ये एक्टिव हुआ, मल्टीप्लाई किया बार बार, और इसने एंथेरिडियम का डेवलपमेंट कर दिया। तो एंथेरिडियम का यहाँ ऊपर की ओर एक पोर से खुलता है, अंदर एंड्रोसाइट सेल है, ऑल द क्यूबिकल सेल इज कॉल्ड एंड्रोसाइट सेल। और ये एंड्रोसाइट सेल देखो, ये एंड्रोसाइट सेल है, इसमें ऑब्लिक डिवीजन होगा। कैसा डिवीजन? ऑब्लिक, देखो तिरछा, ऑब्लिक माने तिरछा डिवीजन हुआ। और ये है एंड्रोसाइट मदर सेल, एंड्रोसाइट मदर सेल, जहाँ लिख लो इसको फट से, एंड्रोसाइट मदर सेल है। एंड्रोसाइट मदर सेल में ऑब्लिक डिवीजन होगा, एंड आफ्टर ऑब्लिक डिवीजन ईच सेल इज कॉल्ड एंड्रोसाइट सेल, एंड्रोसाइट सेल। Every androcyte cell finally metamorphoses into biflagellated single-celled uninucleated structure, and that is called androcyte. बोलिए, आपकी समझ में आया? और चूंकि जियोलॉजी की क्लास है, इसलिए